آج پروگرام میں بات کریں گے قومی اسمبلی میں آج اپوزیشن کے اراکین نے وزیر اعظم عمران خان کی کل کی تقریر پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے خواجہ سعد رفیق نے عمران خان کی تقریر پر تنقید کی اور ساتھ میں کہا کہ عمران خان کو آج ایوان میں آ کر صورتحال پر بات کرنی چاہیے تھی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لیکن تھوڑی مختلف بات کی اور کہا کہ وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی تنقید سے مکمل اتفاق نہیں کرتے۔ I do not share some of our opposition party members' criticisms of the Prime Minister's speech. I expected him to deliver a speech today along the lines of what he said yesterday, and for me to be able to say کہ قدم بھرائے عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم انصاف کے ساتھ ہیں اور ہم رول آف لا کے ساتھ ہیں۔ مسٹر اسپیکر، وزیر اعظم کی کل کی تقریر کے باوجود جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دھمکیاں دینے والوں کو صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، حکومتی وزیر آج اس معاملے پر کنفیوژن کا شکار نظر آئے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد خبر آئی کہ احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی، لیکن ساتھ ہی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ کوئی اس دھوکے میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے۔ دوسری جانب وزیر دفاع پرویز خٹک اور پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان دونوں نے کہا کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ سخت کارروائی ہرگز نہیں کی جائے گی۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں بہینہ سیٹھی، میں نصرت جاوید۔ 05126060227 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول-بول-پاکستان1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں @bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ اچھا بی میں سب سے پہلے جو آپ نے جو دوسری بات کہی ہے نا گورنمنٹ منسٹرز والی، دیکھو ہاکس اینڈ ڈو کا کھیل چلتا ہے، ہاں لیکن تو چلتا ہے، کانٹرڈکشن الگ بات ہوتی ہے۔ نہیں بی اس سے زیادہ جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک ایسے ماحول میں آپ کنفیوژن نہیں پھیلاتے۔ ہاں تو صحیح معنوں میں جو کنفیوژن پھیلایا ہے وہ پھیلایا ہے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب۔ ایبسلیوٹلی ہوا یہ ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے اس کیس کو پرسو کیا تھا، قاری سلام صاحب، وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں یہ استدعا لے کر گئے ہیں کہ ریویو پٹیشن کہ ریویو کیا جائے اس فیصلے کو، وہ ان کا حق ہے۔ صحیح، اسی ریویو پٹیشن کی درخواست میں ہی انہوں نے یہ پلی بھی لی ہے کہ آسیہ کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اس معاملے میں قطعاً خاموشی اختیار کرتی کہ ایک آدمی ہے جو یہ کیس پرسو کر رہا تھا، ہاں کہ رائٹ، اعلیٰ ترین ملکی عدالت سے فیصلہ آ گیا، اس پہ ریویو کی درخواست کرنا موصوف کا حق ہے، وہ انہوں نے استعمال کیا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے کچھ ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے یہ جو ریویو پٹیشن ہے میں کوئی حکومت کا کوئی حکومت کی ونک اینڈ ناٹ پہ ہوئی، یس، ساتھ ہی چونکہ اس میں تذکرہ ہے وہ ای سی ایل کا، تو وہ ظاہر ہے حکومت ہی پھر اس میں انوالوڈ ہوگی نا۔ پھر مزید انہوں نے اس میں اور جو اس کو بنایا وہ تھا کہ جی 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے ساتھ۔ اب ایک دم سے جو ہے وہ پھیل گیا۔ دیکھیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، میں کل بھی آپ سے عرض کر رہا تھا، ہم لوگوں کو سیکھتے رہنا چاہیے، ہم کبھی بھی عقل کل نہیں بن جاتے۔ میں انتہائی دیانتداری سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہاں پر جب لال مسجد والا واقعہ ہو رہا تھا تو میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے جیسے لوگ روزانہ اس کی کلپ لے کر کہتے تھے حکومتی ریٹ کہاں ہے، نہیں خاص طور پر جب انہوں نے کچھ وہ چینی ہاں بالکل وہاں کو کہ بھائی اب یہ تو معاملہ
एक और जगह जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? But that was a correct question नुसरत साहब, आपका सवाल उस वक्त तो गलत सही तो ना, नहीं था। लेकिन बीबी जब एक्शन हुआ जो मैं आपको कल कह रहा हूँ, तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो डिस्कोर्स बना, हाँ। वो डिस्कोर्स ये था कि जैसे उनके साथ ज्यादती हुई, बच्चे और वगैरह, और उस पूरे किस्से में, जैसे मैं कल भी कह रहा था, एक कर्नल जिसने अपनी जान का नजराना दिया डेयरिंग एक्ट से, उनका नाम तक हमें याद नहीं है। ये फैक्ट है या नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल है। अब हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम जो रेगुलर किस्म का मीडिया पे बैठे होते हैं, जिन्होंने ये सीखा हुआ है कि यार खबर को बयान करने से पहले यहाँ पर किसी न किसी एडिटोरियल मशीन से गुजारना होता है, हमारे साथ मुसीबत हो गई है ये सोशल मीडिया कि ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गई। अब हम बजाय अपने हुनर पर तवज्जो देने के हम देख रहे हम हैं, इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार हम इसको कैसे बीट करेंगे। वो बात आम आदमी कर रहा हो सो कॉल्ड सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर, तो उससे मुझे शिकायत का कोई हक हाँ ठीक है, वो क्योंकि एक फोरम है, उस पे लोग बैठ के अपनी सारी सहाफत के नजर कर देने के बाद मैं बतौर सहाफी अगर उसको रीट्वीट करके एक हवाले से ऑथेंटिकेट करना शुरू हो जाऊं, तो ये ज्यादती की बात है, मुझे उससे परहेज करना चाहिए। आरटीज लेना, लाइक्स करवाना कोई इतना भी जिंदगी और मौत का, हम बेसिकली हमारा जॉब जो है वो खबर को ढूंढना है और खबर को एडिटोरियल मशीन से गुजार के लाना है। ठीक है, ओके। नतीजा क्या हुआ कि एकदम से हड़बड़ाकर फवाद चौधरी साहब को अपनी ही वहाँ के जो उनके कुलीग हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात, उसकी तरदीद करनी पड़ी और दोबारा याद दिलाना पड़ा। शिरीन मज़ारी साहिबा भी ट्वीट कर रही हैं कि ये गलत बात हो गई। अब उससे तासुर ये जाएगा कि हुकूमत यकसू नहीं है। हाँ। वो यकसुई ना होने से क्या हो रहा है, जैसे आप खुद कह रही हो कि आपको पूरी रात लोग जिताने देते रहे। नुसरत साहब अभी तक दे रहे हैं, मैं क्या कि आप कल खान साहब, जब मैंने भी इंतहाई संजीदगी और खुलूस के साथ इमरान खान साहब की वो जो कल बात कर रहे थे वो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। मैं अब भी तकरीबन 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद अपनी उस तारीफ से रुजू करने को हरगिज तैयार नहीं। हाँ, अगर वो कुछ कर लेना, क्योंकि अब वो बात फिर भी वहीं की वहीं, और अब तो नुसरत साहब मुज़ाकरात पे वो उतर आ चुके हैं, तो फिर क्या करें? इसका मतलब कोई बटन तो नहीं लगा हुआ ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं लाल मस्जिद के ऑपरेशन के हवाले से यही कह रहा हूँ। देखिए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। मेरी दानिश में जहां पर मेरा वजीर आजम से गिले का आगाज होता है, वो गिले का आगाज वो जो आपने क्लिप दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर। हाँ, एब्सोल्युटली, दैट्स ट्रू। जैसे कल इमरान खान साहब अपनी तकरीर के कंटेंट के हवाले से बिल्कुल हक बजानिब थे, उसी तरह जो पोजीशन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ली है वो भी 100% करेक्ट। हाँ। मुझे ध्यानदारी से बताइए कि क्या अब ये नाउ और नेवर वाला वक्त है या नहीं। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि वो ये कहते तो ना शहबाज साहब ना बिलावल साहब हरगिज ये ना कह पाते कि जी नहीं। इस तरह उन्हें एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिलती, हाउस का वकार बनता, और दूसरे तमाम जो हमारा इंतजामी ढांचा है रियासत का, उसको पैगाम जाता कि ये जो इस वक्त मसला चल रहा है इसको पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ वाले कैश कराने को तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन ये तासुर तो फिर हरगिज नहीं गया। जब ये तासुर जाता है तो उससे फिर इंतजामिया जो है वो चौकन्नी हो जाती है। वो ये कहती है कि भाई हमें कहीं से हेल्प वेल्प नहीं मिलने वाली अगर हमने कोताही दिखाई तो, और खुदा न खास्ता हमने अगर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में कुछ मुश्किलात आ गई तो ऐसे नहीं होगा कि इस हुकूमत के मुखालिफिन हमारी जान के दरपे हो जाएंगे। सानह है मॉडल टाउन मिसाल के तौर पर। देखिए ना, ऐसे वाक़यात भी हमें ज़हन में रखने चाहिए। हाँ, कि हो चुका है, हुए हैं बहुत दफा। अभी
इसी हफ्ते के आगाज में आपने पंजाब के बहुत सारे पुलिस अफसरान को सिर्फ इस वजह से सजा दी है कि वो आपकी दानिश में मॉडल टाउन वाले वाक़े के किसी न किसी तरह जिम्मेदार थे। अब मैं उसी फोर्स को बुला के जब ये कहूँगा कि भाई ये उठाएं, ये क्या हो रहा है, तो जिसको आप हुक्म दे रहे हैं, हाँ, और आप उसको क्या गारंटी है कि यार आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दो? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो they'll probably be very hesitant, क्योंकि वो फर्ज करें कि वो बंदा ये सोच रहा होगा कि यार खुदा न खास्ता मुझसे कोई कोताही हो गई, कहीं मैंने ओवर स्टेपिंग हो गई मुझसे, तो यार ये नवाज लीग वाले तो यहाँ पे मतलब ये इनका मॉडल टाउन हो जाएगा, ये उनको मॉडल टाउन मिल जाएगा। तो ये एक आपको ये करना चाहिए था वजीर आजम साहब, सारा दिन था उसी काम करने के लिए, but he didn't do it, so then उनको ये करना चाहिए था। उससे मैं जो हूँ ना वाक़तन मुझे अफसोस हुआ। पर नुसरत साहब उससे तासुर तो ये गया कि बस अच्छी तकरीर करके बस चले गए वो, he didn't really intend to follow up on it। और फिर वो जो ताने मिल रहे हैं मुझे रात से, वो मतलब मैं उनको यही कहने पे मजबूर हूँ कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप ही, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलें ब्रेक नुसरत साहब, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ आपकी ये जो बात है ना, हो सकता है उसमें हकीकत ना हो, ओके कि भाई उन्होंने बस तकरीर करके, तकरीबन वैसी ही बात इस वक्त जो आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू चल रहा है, मैं वो टिक कर देख रहा था, वो भी तकरीबन ऐसी ही बात उन्होंने थोड़ी देर पहले हामिद मीर को कही। अच्छा, कि बस ये तकरीर कर दी और दूसरों को आगे कर दिया कि यू हैंडल इट, राइट, इंप्रेशन कमांड एंड कंट्रोल अपने पास नहीं रखा। ये कमांड एंड कंट्रोल अपने पास न रखने का तासुर बुनियादी तौर पर इस वजह से फैला कि वो आज हाउस में नहीं आए। हाँ, श्योर, हाउस में आ जाते और मैक्सिमम 10 मिनट दे देते, एक 2 मिनट की गुफ्तगू, और उसके बाद जितनी कल मुख्तसर तरीन तकरीर थी उतनी ही तकरीर, और जी मैं जा रहा हूँ और ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, राइट। दूसरी जो बात है कि मुझे ये एहसास हो रहा है, मैं लोगों से बात भी हुई, ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड, मेरा अपना ख्याल है कि उनकी जो कल की तकरीर थी, वो तकरीर जो है वो एक काफ़ी बैकग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लेने के बाद करना चाहिए थी। रियली? ओके। क्योंकि मैं तो ये समझा कि यार आज सुबह फैसला आया है, बाकी तमाम दिन कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रखी होगी। राइट। हमें वो हिकमत अमली नजर नहीं आई। मिसाल के तौर पर आपने तो फैसला सुबह को आना था, रात ही को आपने मुख्तलिफ जराए से हम जैसे लोगों को ये कहलवा दिया कि साहब इसके बारे में गुफ्तगू से परहेज कीजिएगा। हम सब ने बड़ी एहतियात से सिर्फ खबरनामे में उसका तस्करा किया और आगे बढ़ा। हमरा की एडवाइजरी थी नुसरत साहब को, ठीक सीधी सी बात है, उन्होंने कहा प्लीज नो रिपोर्टिंग। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए, ये को सुबह 10 बजे के करीब फैसला आया है, राइट, उर्दू में भी मयस्सर था। हाँ, कल मैं और तुम अगर 6:30 बजे अपना सर यूं पकड़ के क्या बात करें, हम तो जिक्र ही नहीं कर सकते, उसकी बजाय हम उसकी बात की सोच रहे हैं, उसकी सोच रहे हैं, वो तो तकरीर आज़म साहब तकरीर न करते, उस वजह से हम इस प्रोग्राम में तो हमें स्पेस मिली ना, वरना भाई हम वो जो फैसला भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और वो बहुत मुद्दलिल फैसला है, अगर हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली होती तो सारा दिन सुबह से ये कर सकते थे कि स्पेशल ट्रांसमिशंस करवाते। हाँ, कि क्या फैसला है, जिसमें लोग फैसला आने के थोड़ी देर बाद वकला अदर पैनलिस्ट वो एनालिसिस करते कि जी इन बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया। हाँ, क्यों बरी हुई खातून, उस तरफ से तो कोई आया ना,
दूसरे जो थे लोग, उन्होंने फौरी तौर पर सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपनी बात जो है वो सब तक फैला दी, कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। नहीं डेफिनेटली, और बहुत इफेक्टिवली, बिल्कुल। उसकी भी तो देखिए ना, अब कुछ सोचने की बात है कि आप एक ब्लैंकेट कर देते हैं। आपका ये ख्याल है कि हम लोगों ने सारी जिंदगी घास काटी है, आप क्या चाहती हैं? चले, आप तो यंग जर्नलिस्ट हो मेरे मुकाबले में, आप क्या वाकई चाहती हो कि हमारे गली मोहल्लों में जो है वो हंगामे बलबे हो? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये किसी तरह डिफ्यूज होनी चाहिए नुसरत साहब सिचुएशन, सीधी सी बात है। मतलब लोगों को भी मुश्किल है, और बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसके गिनती अलावा के चंद लोग हैं जो स्क्रीन को इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शायद इन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी, ये लाडले इन्हीं लोगों के। हाँ, यस, इसमें कोई शक नहीं। ये मानिए, अब उनके किए की वजह से आप मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे, जबकि मैं आग नहीं भड़काना चाहता। आपने अभी बात की कि जी तकरीर के बाद फिर हुआ क्या? मैंने कहा बीवी को स्विच लगा हुआ है, और लेकिन मैं आई मेंट इट। ये सवाल ना कर रहे होते ना, वही आपकी बात पे वापस आऊंगी कि इफ ही हैड कम एंड टोल्ड अस। ये जो बात है फयाजुल हसन चौहान साहब को, ये क्यों आप ये देखिए, आप एक अहम तरीन बात भूल रहे हैं कि ये फैसला, ये इमरान खान साहब और मुजाहिरीन के दरमियान बात नहीं है। एब्सोल्युटली, मतलब फैसला आया है पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से, बिल्कुल, जिसके खिलाफ अपील की गुंजाइश नहीं है, बस रिव्यू की गुंजाइश है। बिल्कुल। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मैं हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने जाऊंगा तो मेरे पास देने को क्या है? यही तो सवाल है नुसरत साहब, तो फिर क्यों ये बात ऐसी कर रहे हैं ना? यही मतलब दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन भैया, अगर वो अपनी दानिश्त में डिफ्यूज करने के लिए ये दावे कर रहे हैं, तो मुझ ऐसे लोग जो खुद को सहाफ़ी समझते हैं, क्यों उसकी बुनियाद पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ? वाई? मुझे अपनी अकल इस्तेमाल करके एक बात तो समझनी चाहिए ना कि दो वुज़रा हैं, वो जाते हैं, वो क्या कहेंगे? हम फैसला, वो क्या मतलब फैसला कि बदलवा मुज़ाकरात देंगे, में क्या यू कर हैव देंगे? टू गिव हाँ, एंड टेक समथिंग ना। एग्जैक्टली, तो क्या ऑफर कर सकते हैं आप उनको कि आप यहाँ से उठें? हाउ कैन दे कांट, एंड कौन सी अथॉरिटी, कौन सा? आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, बिल्कुल, ये बात तो चलिए, खैर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अब मैं जो सारा मैं ये देख रहा हूँ, वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक आपका आला तरीन अदालत है, तो पाकिस्तान का जो आम आदमी है, जो जिंदगी से वैसे भी परेशान होता है, गुस्से से, वो जाहिर है कि हमारे यहाँ अमीर और गरीब के दरमियान जो फर्क है, और जिंदगी जो मुश्किल हुई हुई है, आजकल कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रेज का जमाना है, और हम में से अक्सर लोग, हम इस रेज पर अपनी दुकान चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। बीवी मुझे बताइए, वो किसके साथ जाएगा? मुझे कहेगा यार इन लोगों के साथ शामिल होना चाहिए, क्योंकि एक तो उस सादा लोग शख्स को होगा कि यार ये तो जैसे मेरे दीन की बात कर रहे हैं, उसको पहला अखलाकी कुव्वत ये। दूसरा ये कि यार अगर आप इनके साथ शामिल हो जाओ तो जो मर्जी को ये अपनी बात मनवा लेते हैं ना, तो शायद हमारे लिए भी इसमें कुछ आ जाए। तो श्योर, मौजा लुटो, और दरमियान में अगर एक आध गाड़ी भी जला दो, हाँ तो क्या जाता है, अपने कैथारसिस करो और अपना कैथारसिस। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ आ जाइए, वो आपको ये बात तो माननी होगी कि हमारे यहाँ कुछ हैं सियासी जमातें, ज़्यादातर वो अब राइट ही की पार्टियां हैं, किसी हद तक
लिबरल थोड़ा बहुत कह लो, तो वो पीपल्स पार्टी जो रह गई है, जो भी जितनी भी है सही बात है। ये दो जमातें जो हैं, इन दोनों के अलावा यानी पीटीआई और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके अलावा अगर आप थोड़ा ठंडे दिल से तजिया करें भाई, तो पाकिस्तान में 8 से 12-13% लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने दीनी सियासी जमातों को वोट दिया है, हाँ वो जमात इस्लामी हो, JUIF हो। हाँ, और फेयरली कंसिस्टेंट उनका एक वोट बैंक रहता है ना, बिल्कुल रहता है, कम तो नहीं होता ना। चलें बड़ा, अब वो जो वोट बैंक था, हमारे कुछ लोग कहते थे कि साहब एक ज़माने में वो सलफीज के पास था जो बिलाखिर इंतहा पसंद हो जाते हैं, तो पहले तो बड़ा खुश हुए कि जी बरेलवी तो सॉफ्ट वर्जन होता है, प्रोजेक्ट तो और ये उस ज़माने में मुशर्रफ साहब के इनलाइटन मॉडरेशन के ज़माने में गुफ्तगू शुरू हुई, इंटरफेथ हार्मनी वगैरह के भी गुफ्तगू। चले वो मिथ तो टूटा ना। चले सूफीज़म, कहाँ है सूफीज़म का ये एक अब फेस निकला। अब इस फेस के बाद उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया, और ख़ास तौर पर पंजाब में अभी चकवाल में बाय इलेक्शंस में, जिसमें मुस्लिम लीग बाहर थी, 30,000 से ज़ायद वोट। हाँ नहीं, you're right। तो कराची में 222 नशिस्तें भी ले गए नुसरत साहब। फर्ज करें, मैं ये कहता हूँ कि ये जो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, इस वक्त बैक आउट करते नजर आए, तो आपके पास क्या गारंटी है कि दीगर जमातें जो हैं, मिसाल के तौर पर, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ये हो जाएगा, नहीं मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, किसकी? लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जब से इंतखाब हुआ है बिलबिला रहे हैं, चैन से नहीं बैठ रहे, कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने कोशिश की कि लोग असेंबलियों में ना जाएं, हाँ वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने बड़ा, उन्हें अपनी दोस्ती पे नाज था, अपनी गुफ्तगू पे, और वो अच्छे यानी मुज़ाकरात में बहुत उन्हें आता है ढंग। ये ठीक है। इस तमाम उनकी शोहरत जो है वो दागदार हो गई जब वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ कोई APC में ना ला पाए, या तो APC ही उन्होंने अपनी फिलहाल को तैयार न कर पाए, पोस्टपोन कर दी उसके बाद। हाँ, फर्ज कीजिए कि वो बैठे हुए हों और जिस किस्म की नाराज़गी का आलम उन पे तारी है, वो ये कहें यार अच्छा भाई ये दोनों तो मेरे सुनते ही नहीं हैं, तो हमारे पास अपना मदरसों का नेटवर्क है। तो कल तो वो बात कर ही रहे थे, देखिए ना, वो तो कल मतलब तक इनएविटेबली बात तो जाएगी भाई। देखो, कल तक तो सिर्फ एक इशारतन बात की ना, हिंट दिया, तुम ये भी कह लो, चलो धमकी दी। हाँ, आप उनके सख्त मुखालिफ हैं, कहिए जी ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन लफ्ज़ आप जो भी चुन लें, आप इस इम्कान को तो कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते ना कि लो जी ये बड़े बन के आए थे और पता नहीं क्या लेकर मौसूफ चल दिए। राइट, हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं इसीलिए दोस्तों को समझा रहा हूँ, दोस्तों का ये ख्याल है कि जैसे पता नहीं अचानक मैं इमरान खान साहब के इश्क में मुब्तला हो गया हूँ। मैं इस उम्र से गुज़र चुका हूँ जहाँ पर कि मैं किसी भी सियासतदान का फ़ैन बन सकूँ। चलें, ओके, मैं उम्र के उस हिस्से से बाहर आ चुका हूँ, अरसा हुआ। वैसे भी मेरा धंधा ही ऐसा था, उसने मुझे इतना इनके सामने इंटरेक्शन हाँ, कि वो फैन बनना मुमकिन तो मेरे लिए वैसे ही फैन बनना, इनके तमाम कारनामों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं ये नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा। But what are you saying, नुसरत साहब, कि क्या गवर्नमेंट के मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के पास एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कह रहा हूँ, बैकआउट करने की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा चले, ओके, देयर इज नो टर्निंग बैक, ओके, चले प्लीज, ओके, नो टर्निंग बैक। बट व्हाट, ये मैं सियासी बुनियादों पे बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की मोहब्बत में बखुदा नहीं कर रहा हूँ। चले चले ब्रेक, ये बात मैं समझाने की कोशिश, मजीद सियासत को एज अ सब्जेक्ट देखें भाई। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है bolbolpakistan_। मैं क्यों कह रहा हूं कि देयर इज नो टर्निंग बैक? हाँ प्लीज, आई रियली वांट टू नो। कल सुबह से ऑलरेडी ये लोग जो कुछ कह रहे थे, आपको भी मालूम था, मुझे भी मालूम था। फर्ज करो कि मुझे इजाजत भी होती, ब्लैंकेट बैन ना होता, तो जब भी हम उनकी क्लिप्स को 100 मरतबा उनका क्लिप तो हम फिर भी नहीं चला सकते। मैं एक इस हवाले से ये पॉइंट बिल्ड करने के लिए कि भाई ये कहां तक आ गए बीबी, ये कोई ढूंढ के मुश्किल से जो इतनी बुरी नहीं थी कुछ तो चला देते। चले ओके कर रहा हूं ना कि लेकिन उस तमाम एहतियात के बावजूद मैं और आप उनके कहे हुए अल्फाज की मोहतात और वेरी वेल सेंसर्ड महज रिपोर्टिंग की बिना पर अपनी नौकरियां गंवा सकते थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। वही बातें जो मुझे दिखाने और उन पर बहस करने की इजाजत न थी, अगर मैं दिखाकर उस पर बहस करता तो शायद मैं वही बात करता जो खान साहब ने की कल वज़ीर आज़म ने। वो एग्जैक्टली वही अल्फाज वज़ीर आज़म साहब ने दोहरा दिए। हाँ। कौम से खिताब में। हाँ, तो भाई आपने जो सुबह से ब्लैंकेट क्लैम्प डाउन कर रखा था वो कहाँ गया? देखिए ना। फिर मुझे बताएं कि आपको क्यों लग रहा है कि ये सोच समझ के होमवर्क और बैकग्राउंड के साथ आए थे ना, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि प्रॉपर होमवर्क नहीं था। अच्छा, जबकि दूसरे लोगों ने जब से जजमेंट रिजर्व हुई थी, हाँ वो तो अपनी तैयारी करते उस वक्त से उन्होंने लोगों को ज़हनी तौर पर कि अगर इसको छोड़ा तो फिर हम आएंगे और फिर आ गए। आपने मुझे या जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनकी आप फरासत पर आप को एतमाद है, आपने उनसे रजू नहीं किया कि यार ये भैया ये क्या हो रहा है? yes, that seems to be the case. It seems that he just came and जरा थोड़ा सा कहें कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, ये एक थोड़ा सा उसके बारे में भी हमने कबूतर वाला रवैया रखा, क्या आंखें बंद कर रखी कि जी बिल्ली आएगी और गुजर जाएगी। ऐसे तो नहीं होता ना। You don't govern like this. No. Absolutely not. So then why can't he back out? आपके पास हेट नहीं, बैक आउट कहाँ होगा? नहीं मतलब वो तो कैसे? आई डोंट नो वो क्या कंसीड कर सकते हैं इनको, या भैया मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि कल की तकरीर के बाद वजीर आजम साहब आज अगर उससे रजू करके तो कुछ कंसीड भी करना चाहते हैं तो उनके पास कंसीड करने को कुछ नहीं है। हाँ। उनके पास नहीं है कार्ड कोई। हाँ दैट्स ट्रू। क्या वो उनके पास कोई आईनी कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहें कि जी आप अपना फैसला वापस नहीं अरे भाई कैसे हो सकता है? एब्सोल्युटली या ये तो अबसर्ड बात है, बिल्कुल मतलब सोची भी नहीं जा सकती। हाँ। ज्यादा से ज्यादा आप वो माजी की तरह वाला ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि जी अच्छा चलिए आप ऐसा करें कि ये खत्म कीजिए, घरों को चले जाइए, तो हम आपके खिलाफ ये मुकदमात नहीं कायम करते। वो तो मेरे ख्याल में गिवन ही होगा। सुने ना एक अब आप क्यों इतना उस पे कह रही हैं? माजी का वाई गिवन? फर्ज करें हुकूमत ये भी कह दे, फर्ज करें आज खुद नोटिस नहीं हो जाएगा, उसके इम्कान आप कैसे आप नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि देखो ना हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते। देखो खुदा के लिए तो हमारा सबसे बड़ा मसला लोगों को हटाना पड़ेगा, वन वे और द अदर हटाना पड़ेगा, वन वे और द अदर। ओके। और इस पे बैकआउट की गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है। चले ये हालात का हाँ लॉजिक टेल्स मी सिचुएशन। दैट। अरे बीबी एक हेगल बहुत बड़ा फिलोसोफर आज से 300 साल पहले समझा गया कि एक चीज होती है हिस्टोरिक डिटर्मिनेशन, आप चीजें तय नहीं करते, हालात का जबर होता है। ठीक है कि आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं रहती। ये जो आप समझ रही हैं कि जब आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि आपने दूसरों को आगे कर दिया खुद निकल लिए बाजू की गली से,
خورشید شاہ کی جو آج اسمبلی میں تقریر تھی, خورشید شاہ صاحب کی تو خیر سمجھ ہی نہیں آئی, مجھے پوری آئی. ارے یہی تو ان کی سیاسی گیم تھی. کیا سیاسی؟ خورشید شاہ صاحب کی بنیادی اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا نا, چونکہ وہ بلاول بھٹو کر گئے. ہاں ارے بھیا چونکہ انہوں نے تقریر پہ تنقید رکھی ہوئی تھی فوکس, لیکن اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ساری باتیں کہہ دی. ہاں جو مطلب آپ نے کہا تھا کہ کرنی نہیں ہے, یہ وہ سیاسی چلاکی تھی. اچھا اوکے. یہ وہی بات ہے جو اب آصف زرداری اس کو زیادہ گگلی کر کے دے رہے ہیں کہ دوسروں کو آگے کر کے خود کھسک لیے. ایسے نہیں ہوتا. جب آپ خود جھوٹ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے فلاں لوگوں کو واجب القتل قرار دیا, صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں, آپ پاکستان کے وزیر اعظم, چیف ایگزیکٹو, آپ نے ایف آئی آر لکھی ہے کل, ہاں میں نے نہیں لکھی. آپ کی تقریر ایف آئی آر ہے. اس ایف آئی آر کو پڑھنے کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ان کو کچھ یعنی کہ اس کی حساب کتاب لینے کے لیے جاتے جاتے اپنے وزراء کو تو یہ بتا جاتے نا, تاکہ یہ مختلف طرح کی عجیب و غریب باتیں نہ آتی. چلیں آخر بہرحال ہمارے آن ایئر جانے سے پہلے کیٹیگوریکلی فواد چودھری وزیر اطلاعات وفاقی حکومت کا ترجمان, تو کیا کہے, انہوں نے یہی کہا ہے نا. ہاں اوکے چلیں. سو آئی ووڈ پریفر کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں درست کہہ رہے ہیں, کم از کم اس وقت. وی وڈ ہوپ کہ مطلب ان کی ایسا ہی. میں ہوپ میں پڑھ رہا ہوں فی الوقت, میں نے تو پورا آج میرا مقصد صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے میں نے کال بھی نہیں, میں نے کہا یار لوگ اپنا وہ کریں گے, ہماری ذمہ داری آنا کہ ہم تو یہ پروگرام بیسیکلی لوگوں کی رائے سننے کے لیے ڈیفینیٹلی. میرا یہ تھا کہ اس کو ایز اے پولیٹیکل سچویشن سمجھ کے. ٹھیک ہے, یو سیئنگ ہی کانٹ بیک آؤٹ آف ہز ورڈز یسٹرڈے, جو انہوں نے کل کہا تقریر میں اس پہ انہیں قائم رہنا پڑے گا. چلیں جی, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہفتے کا بھی ہمارا آخری پروگرام ہے. امید کرتے ہیں کہ جب منڈے کو واپس آئے تو یہ سچویشن ڈیفیوز ہو چکی ہو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.